ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों चंडीगढ़ के कौमांतरी एयरपोर्ट के उद्घाटन के ठीक 1 साल बाद हुण कौमांतरी उड़ानां नूं हरी झंडी मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों सख्ती के बाद हुण इंडिगो 26 सितंबर तो अपनी पहली कौमांतरी उड़ान चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो शुरू करन जा रहा है। हालांकि अधिकारिक तौर पर इंडिगो इसका ऐलान 3 अगस्त को अदालत विच करेगी। Finally, ultimately, the dream come true for the city and the people of this area that an international flight is finally going to take off from 26 September onwards. और फ्लाइट के टाइमिंग्स भी आ गए, सो आई एम श्योर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ व्हेन द मैटर इज़ टेकन अप ऑन द 3rd of August दैट एक स्टेटमेंट दी जाएगी इंडिगो की तरफ से कि साहब ये हमारी टाइमिंग है और ये शेड्यूल है और अब से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। चंडीगढ़ और दुबई के विचाले उड़ान नॉन स्टॉप चलाई जाएगी। इंडिगो हर रोज़ दुबई लिए 2 उड़ाना भरेगी। सवेरे दुबई तो 6:05 ते इंडिगो का जहाज़ उड़ान भरेगा तो भारत के समय मुताबिक 11 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगा, जबकि शाम को चंडीगढ़ तो दुबई लिए इंडिगो की फ्लाइट भारत के समय मुताबिक शाम 4:15 ते उड़ान भरेगी तो दुबई के समय मुताबिक 6:20 ते पहुंचेगी। चंडीगढ़ के कौमांतरी उड़ाना शुरू होने पर यात्री काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है। जो भी लोकल लोग हैं उनको बड़ा आराम होगा। और आप जानते हैं कि अगर जब तक आप बाहर मुल्कों से अपनी फ़्लाइट को कनेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, तो इससे दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि पहले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, तो अब डायरेक्टली लोग बाहर जा सकते हैं, तो उतना टाइम भी सेव होगा और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। 11 सितंबर 2015 ਨੂੰ पीएम नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁੜਗਾਉਂ 84 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਫਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। मुआवजे का सीएम साहब ने ओके बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर मुआवजा जो है वो अपना डिस्पर्स कर दिया जाएगा। हमने कोशिश की कि ये 10 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, तो सीएम साहब ने कहा है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 7 से 10 दिन के अंदर इसकी अपना इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। 300 करोड़ को लॉस पहुँचाया गया था, जिसके अंदर 150 ने पटिशन डाली, 150 पटिशन नहीं डाल जाते। अब उन्होंने जज साहब ने, टीपी गर्ग साहब ने कहा कि ये पैसा 3 महीने के अंदर अंदर ये पैसा बंटवा दिया जाए। लेकिन आज हमें खट्टर साहब ने आज पूरी उम्मीद दी है कि ये पैसा जल्दी से जल्दी, उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर हम बंटवा दें। 1984 ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਆਲੋਕ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੁੜਗਾਉਂ। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हवाई सर्वेखण कर गुरुग्राम की स्थिति का जायजा लिया ते लंघे दिनों लई लगे महाजाम के लिए जिम्मेवार पिछली सरकार नूं दस्सिया। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के लिए बनाए गए मास्टर प्लान दे विच कई खामियां ने।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। तो ये सारा एक बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कोई मास्टर प्लान हम लोग बनाएंगे और निश्चित रूप से इसको ठीक करेंगे। देखिए, मुझे बड़ी समस्या लग रही है और इसमें मैं किसी एक के ऊपर ये विषय डालता हूँ तो मुझे भी लगता है कि ठीक नहीं है और इसकी कोई बड़ी योजना बननी चाहिए थी। हम केंद्र सरकार से भी ये रखेंगे। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने नजफगढ़ ट्रेन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि नजफगढ़ ट्रेन के नाल दिल्ली वालों बंद बनया होया है, जबकि हरियाणा के इलाके अजिही कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने गुरुग्राम को जाम फ्री बनाने की खातर मास्टर प्लान से काम करने के संकेत दिए हैं। ड्रेन भी पानी को जितना उसको संभाल लेना चाहिए, नजफगढ़ ड्रेन भी मुझे लगता है कि उसको सफाई नहीं की गई है और उसमें भी दिल्ली की साइड में बांध बना हुआ है, हरियाणा की साइड में उसमें बांध नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी का फैलाव बना हुआ है। तो ये सारा एक बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कोई मास्टर प्लान हम लोग बनाएंगे। असल च दिल्ली जयपुर हाईवे गुरुग्राम तो होकर लंघदा है, जबकि दिल्ली गुरुग्राम का रेगुलर ट्रैफिक भी काफी वध है, जिस दे चलदे जाम लगन नाल इत्थे स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। गुरुग्राम तो पंकज कपाही, जी मीडिया। गुरुग्राम तो बाद गल दिल्ली ते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल दी। जी हां, अरविंद केजरीवाल 10 दिन की अध्यात्मिक साधना के लिए धर्मशाला पहुंच गए ने। अरविंद केजरीवाल 10 दिन तक सियासत तो दूरी बनाए रखणगे ते पूरी तरह मौन साधना उत्ते ध्यान केंद्रित करनगे। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी वार पलटवार तो दूर धर्मशाला की शांत वादियां च पहुंच गए ने, जिथे अरविंद केजरीवाल अगले 10 दिनों तक सियासी गतिविधियों तो फासला बनाए रखणगे। केजरीवाल धर्मशाला 10 दिन तक विप आसना के तहत ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका असर उन्होंने धर्मशाला पहुंचने के वक्त भी नजर आया, जिथे पहुंचे केजरीवाल ने स्वागत के लिए पहुंचे सैकड़ों वर्करों का हाथ बढ़ा के इस्तेकबाल किया और मीडिया तो दूरी बनाते हुए मैडिटेशन सेंटर के लिए रवाना हो गए, जो एयरपोर्ट तो करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने गैर मौजूदगी च दिल्ली च सीएम का कामकाज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देखणगे। केजरीवाल के नाल कांग्रेस के सीनियर आगू और मंत्री जीएस बाली भी सन। बाली मुताबिक केजरीवाल नाल उन्हां दी गल हुंदी रहिंदी है और वह स्वास्थ्य लाभ के लिए इत्थे पहुंचे ने। धर्मशाला तो एस कपालपुरी दे नाल जी मीडिया। केजरीवाल धर्मशाला पहुंचे ने। उधर कुल्लू च रघुनाथ मंदिर उत्ते सरकार के अधिग्रहण के मामले च हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले सूबा सरकार तो 11 दिन दे विच जवाब मंगिया और मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त नूं होवेगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार नूं रघुनाथ मंदिर ते सरकार दे एक्वायर करन दे मामले नूं लैके कुल्लू दे विधायक राजा महेश्वर सिंह दी जनहित याचिका ते सुनवाई हुई। इस सुनवाई विच रघुनाथ मंदिर दे सरकार दे जमीन एक्वायर करन ते रोक लगा दी गई है। नाल ही सूबा सरकार तो 11 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने नूं कहा है। कोर्ट ने सरकार दे जमीन एक्वायर करन ते 11 अगस्त तक रोक लगा दी है और इस नूं लैके सरकार तो जवाब मांगया है कि ये जमीन एक्वायर किस आधार पर किया गया है। तो कोर्ट ने अभी जो हाल में ऑर्डर किया है वो ये किया है कि इस नोटिफिकेशन के कॉन्सिक्वेंस में जो कोई आगे की कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी और जहाँ तक नोटिफिकेशन है वो क्योंकि हो चुकी है वो अभी बरकरार रहेगी। महेश्वर सिंह का इल्जाम है कि मंदिर की जमीन एक्वायर करना सियासी साजिश का हिस्सा है। सूबा सरकार ने 25 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਈ कैबिनेट की मीटिंग ਵਿੱਚ इस मंदिर ਨੂੰ एक्वायर ਕਰਨ ਦਾ फैसला लिया सी, जिस तो बाद इसका करड़ा विरोध होया ਅਤੇ इस मामले ਵਿੱਚ मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह ਨੂੰ ज्ञापन भी सौंपा गया। वो हमारा स्टैंड है गवर्नमेंट का कि ये इनकी निजी या प्राइवेट मंदिर नहीं है, बल्कि ये ऐसा मंदिर है जिसमें आम लोगों की आस्था विश्वास है और आम लोगों का इंटरेस्ट इसमें शामिल है।
ਭਗਵਾਨ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਾਡਾ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੀਓ 올림픽 ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਨੀ ਸਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਰੀਓ 올림픽 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। The panel is satisfied about the utmost caution exercised by the athlete in ensuring that no prohibited substance enters his body. जिस प्रकार से देश की जनता ने, देश की मीडिया ने इस मसले को उठाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नरसिंह यादव रियो जाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरफेयर किया और मतलब मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जल्दी जल्दी न्याय दिलाया। फैसले के तुरंत बाद नाडा दफ्तर तो बाहर मौजूद नरसिंघ यादव के समर्थकों ने जश्न मनाया, एक दूजे को मिठाई खिलाई। नरसिंघ यादव ने इस मामले च नाडा के सामने सुनवाई दौरान 500 पन्नियां का हलफनामा पेश किया ते साजिश की गल दोहराई सी। नाडा ने 5 जुलाई को सोनीपत के साइट सेंटर में खिडारियों का रैंडम डोप टेस्ट लिया सी। पहला नरसिंघ का A सैंपल पॉजिटिव आया तो बाद में B सैंपल भी फेल हो गया। नरसिंघ ने मामले को साजिश दसदे हुए CBI जांच की मांग की सी। नरसिंघ ने FIR भी दर्ज करवाई, एक जूनियर पहलवान ते खाने ते पाबंदीशुदा ड्रग लाने का इल्जाम लगाया सी। रिपोर्ट ਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੀਓ 올림픽ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੀਓ 올림픽 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਰੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਪਦਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। सिरसा च डेरा सच्चा सौदा के दरबार च इस बार बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी नजर आए, जिथे उन्होंने डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम नाल मुलाकात की। इस दौरान विजेंद्र ने डेरा सच्चा सौदा मुखी का आशीर्वाद लिया ते बॉक्सिंग के लिए प्रेरित करने ते शुक्रिया अदा किया। विजेंद्र ने दस्सिया कि विच दरम्यान वो एक्टिंग च ध्यान देने लगे सन, पर डेरा मुखी ने बॉक्सिंग ते फोकस करने को कहा, जिस तो बाद उन्होंने कामयाबी हाथ लगी। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग च नंबर 1 ते काबिज होंगे। तब से जुड़ा हूँ गुरु जी के साथ, तब से तरक्की हो रही है मेरी भी, तो आपकी भी बहुत तरक्की हो, मैं ये कामना करूँगा। और मूवी की थी मैंने एक, आपको याद हो, लेकिन जब मैं गुरु जी से मिलने आते मैंने बताया कि मैं गुरु जी मैं मूवी की है, तो उन्होंने कहा कि ना बेटा बॉक्सिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। वर्ल्ड में 15 नंबर हूँ और गुरु जी आशीर्वाद रहा तो एक दिन मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगा। उसे डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह ने बॉक्सर विजेंद्र को टोकन ऑफ लव दे के सन्मान किया और आशीर्वाद नाल नवाजिया। डेरा मुखी ने कहा कि विजेंद्र बहुत पहला भी उन्होंने मिल आए सन और उन्होंने बहुत खुशी है कि विजेंद्र ने अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी है कि इस बच्चे ने माँ बाप का वो ऋण उतार दिया, जिसकी वजह से पहचान होती है। आज इसके नाम से माँ बाप की पहचान होती है तो ऋण उतर जाता है माँ बाप का, जो बहुत बड़ी बात है वेदों के अनुसार। और फिर देश का ऋण उतरता है जब देश का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस बच्चे ने पूरे देश का नाम रोशन किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि पिछले साल ही विजेंद्र ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग च उतरन का फैसला किया सी। विजेंद्र देश के ओलंपिक च मैडल दिला चुके हैं। सिरसा तो विजय कुमार सिंह। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ SMS ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 5 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ SMS ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ। राज्य सभा से जो उन्होंने ये जीत प्राप्त की है उसकी शपथ 3 तारीख को
दिल्ली में होनी है। उसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि हिसार की बेटियां इस समारोह में भाग लें। उसके लिए हमने यहाँ पर हिसार शहर की वोटिंग की थी, जिसमें 15,000 करीब वोट आए। उसमें से हमने 10 लड़कियाँ सिलेक्ट की और 10 में से 5 लड़कियों को हम उनके शपथ समारोह में लेके जा रहे हैं। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सब बहुत ज़्यादा खुश है, सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और इसके लिए सबने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबको सबसे बड़ा थैंक यू चाहते हैं। सुभाष चंद्र जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इतना बड़ा चांस दिया। लोग पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि उनको विधानसभा देखने को मिले, राज्यसभा देखने को मिले। बहुत गर्व की बात है कि हमें यहाँ इस काम के लिए चुना गया है। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्र जी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने लड़कियों को ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके और उनके साथ जा सके। ਪੰਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हरियाणा के सीएम हैं चौधरी मनोहर लाल जी खट्टर। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी अभियान का जो ये मुहिम चलाई थी, उसको 4 कदम आगे ले जा करके हमारे चंद्रा जी ने एक इतिहास रचा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, ये हमारी बेटी को आगे बढ़ने का एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बेटियां इतने अच्छे, मतलब इतना अच्छा मौका मिल रहा है इनको आगे बढ़ने का। ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਹਿਸਾਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ 2 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ 44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 46 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ 40 ਦੀ ਥਾਂ 42 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ 36 ਤੋਂ 38 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है, इसलिए कीमत 'ਚ वाधा लाजमी है। 2 रुपये लीटर हमारा रेट बढ़ा है हर एक वेरिएंट का। जैसे पहले DTM पहले 34 रुपये था, अब 36 रुपये लीटर हो गया है। टोन मिल्क पर 38 था, अब 40 रुपये लीटर हो गया है। स्टैंडर्ड मिल्क 42 था, अब 44 पर लीटर हो गया है। फुल क्रीम मिल्क 46 था, 48 पर लीटर हो गया है। ये हमारा रेट 2 साल पर बढ़ा है। 1 जुलाई 2014 को बढ़ा था लास्ट रेट। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ गई है, इसलिए वाधा जायज़ है। 1 रुपये बढ़ाना चाहिए, 22 का होना चाहिए। 23 तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है ना, बट जैसा 21 का भी बहुत महंगा पड़ता है किचन के हिसाब से। नहीं बढ़ाना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, पर आम आदमी के लिए तो बहुत फ़र्क है ना। गरीब से गरीब लोग को भी चाहिए दूध, तो इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। रेट इन्होंने बताया कुछ देख सुन के बताया होना, बिकॉज ऑफ दिस की जी मझां नूं गावां नूं जी फीड दी जा रही है, जो वो सानू महंगी मिलेगी तो ऑबवियस है फार्मर ਉਹਦਾ रेट भी ਵਧਾਏਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਘਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।